Hello everyone. In worksheet 2.5, will be using different type of identities, and most of the identities you did in your 8th class also. Let's start it. First question, by using the suitable identity you have to solve it. Okay, so fifth part I have taken it here. देखिए ये क्या किस फॉर्म में है, a minus b and a plus b. What is the identity? a plus b into a minus b. So it is x square minus y square. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? a square minus 2x whole square. तो ये कितना आ जाएगा? a square minus b square 9 minus 4x square. तो ये आंसर आ जाएगा by using this identity. Okay, now third part. Observe the third part. देखो, in both the terms, in both the factors, first term is same and the second term is different. अब आपको recall करना पड़ेगा ऐसी कौन सी identity है which we have to use it. So I have written the identity here, x plus a and x plus b multiply. The identity is x square plus a plus b x into a b. अब can you tell me what is x here? यहाँ पे x ये पूरा है 3x. Okay, and a, this is a and minus 5 is b. Now we will substitute it in the given identity to get the answer. Let's see it. X square means 3x whole square plus a plus b. A is 4 and b is minus 5 into x. X is 3x plus a into b means 4 multiply minus 5. अब देखते हैं क्या आंसर आएगा. 9x square, 4 minus 5 is 1. 1 into this minus 3x and minus 20. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. Is it clear? Question 2. In question 2, it is written that evaluate by using the identity. तो जहां पे भी by using the identity लिखा है, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. So 95 you can write it as 100 minus 5 and 96 you can write it as 100 minus 4. तो देखिए, this concept and the identity used here, both of them are same. ओके, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, x प्लस a एंड x प्लस b. सो इफ वी विल यूज a स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस a प्लस bx मीन्स minus 5 minus 4 into x plus a into b means minus 5 multiply minus 4. Is it clear? So by using this identity we will solve it. तो ये आपके पास and minus 900 and plus 20. So what should be the next step? इसको आप solve कीजिए and then subtract minus 900 to get the answer. Question third is factorize. हमने factorize 8th class में भी किया है and here first part अगर आप देखेंगे फैक्टराइज, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट अप से भी होता है एंड बाय यूजिंग द अदर वे ऑल्सो. इसको स्क्वायर में लिखा एंड दिस ऑल्सो वी विल राइट इट इन द स्क्वायर फॉर्म, ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर एंड द इनसाइड वन इज प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. देखिए इनको हमने क्या किया, क्वेश्चन को हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में स्प्लिट अप कर दिया क्वेश्चन को, और अगर इसको सॉल्व करोगे ना यू विल गेट द क्वेश्चन इटसेल्फ. अब ये पूरा किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर. बट सिंस यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन, तो डोंट फॉरगेट टू राइट इट 2 times. फैक्टराइजेशन मीन्स आपको फैक्टर्स बनाने हैं, तो आप फैक्टर्स को नंबर ऑफ टाइम्स यू विल राइट इट. क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन. ऑब्जर्व द क्वेश्चन. देयर आर 3 टर्म्स और 3 टर्म्स का स्क्वायर करना है.
तो अब रिकॉल करो कौन सा वैसा फॉर्मूला है. फॉर्मूला इज a plus b plus c whole square, and in that a square b square c square plus 2ab 2bc 2ca. So can you tell me यहाँ पे a क्या है? This is a, this minus 7b is b, and minus c is c. Now we will substitute in the given identity. A plus b plus c whole square equals this. So a square means 3a whole square plus b square minus 7b whole square. C square means minus c, because identity में सारे positive values हैं. Plus 2ab, 2 into a into b, 2 multiply 3a multiply minus 7b plus 2bc, 2 multiply b into c minus 7b multiply minus c, okay, and plus 2ca, c into a, so 2c into a, okay. So by putting the value in the given identity हमने इसको लिख लिया. अब हमें आगे further solve करना है. We have to solve it. Let's go further. Solve करते हैं. 9a square plus 49b square minus minus will become plus, and this is c square. अब यहाँ पे देखते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 42ab यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस हो जाएगा 14bc, and what about this? Minus 6ac. So this will be the answer. Clear? Now question 5. Question 5 में देखिए आपको फैक्टराइज करना है, and so many formulas or the identities are there. अब यहाँ पे देखो, you are having 6 terms. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 6 टर्म्स आती हैं? सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना है. तो 6 टर्म्स किस में आती हैं? इन दिस फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 टर्म्स इक्वल a प्लस b प्लस c. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. मीन्स ए स्क्वायर मतलब पूरे टर्म का स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे. तो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है. सो टू राइट इट इन द स्क्वायर फॉर्म क्या लिखोगे? होल स्क्वायर फॉर्म √2x स्क्वायर. ठीक है, y होल स्क्वायर, एंड 8z स्क्वायर है. तो 8 को अगर हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, इट विल बी 2√2z होल स्क्वायर. देखिए 2√2 को 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 8. ओके, नाउ यू विल राइट इट 2ab, 2 into a into b into b plus 2bc, 2 into b into c, 2 into b into c, and then 2ca, 2 into c into a, 2√2z multiply √2x. देखिए what we did, हमने इसी क्वेश्चन को हमने एक्सपैंड किया इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. अब देखो, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट फर्स्ट टर्म, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द क्वेश्चन इटसेल्फ. यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं, अब बिफोर दैट देखिए यहां पे माइनस साइन इज देयर. ओके, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, इन दो टर्म्स के साथ माइनस साइन है, तो इसमें कॉमन वेरिएबल को हम देखने की कोशिश करेंगे. दोनों माइनस साइन में, माइनस टर्म्स में, विच वन इज द कॉमन वेरिएबल? एक्स. एक्स इज द कॉमन वेरिएबल. तो जो हमारा एक्स की टर्म होगी उसके साथ हम नेगेटिव साइन डाल देंगे. इज इट क्लियर? तो अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन वेरिएबल है दोनों में से उसके साथ नेगेटिव साइन डाल देंगे. सेम प्रोसीजर हियर. तो ये माइनस साइन आ जाएगा एक्स के साथ, एक्स की टर्म के साथ. सेम थिंग हियर, माइनस, यू विल राइट इट लाइक दिस. इज इट क्लियर? अब देखते हैं,
आप यहां अगर इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास यही क्वेश्चन आ रहा है। देखो -2√2xy, इसको सॉल्व करते हैं 2 into 2 4 √2yz, और इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट -8xz। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, एज आई हैव टोल्ड इट इन क्वेश्चन 3 ऑल्सो। फैक्टराइज का मतलब यू हैव टू राइट द फैक्टर्स हियर, तो यू विल राइट इट 2 टाइम्स। आपको इसको, you will not keep it in the power form, you will write it in the two factors, or 2 times you will write it, then only it will be the factorization. Is it clear? Now question 6 is by using the identity solve it. तो अब देखो a plus b whole cube, a plus b whole cube is a cube 3a square b plus 3ab square plus b cube. This is the identity. तो यहाँ पे a क्या है, what is a, 2x, and 1 is b. Now we will substitute in the given identity. A cube 2x whole cube plus 3a square b. 3a square b means 3 into 2x square into b 1 plus 3ab square, 3 into a into b square plus b cube. b is 1 cube. Now we will solve it further. इसको solve करेंगे 8x cube 2 into 2 4 12x square 6x plus 1, and these identities will be helpful for your higher classes questions also. तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 में देखोगे, अगेन यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 99 क्यूब। 99 क्यूब को कैसे लिख सकते हो, 100 minus 1, 100 minus 1 क्यूब। तो ये देखो कैसा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी होल क्यूब। तो यहां पे हमने क्या कोशिश की थी, आइडेंटिटी a plus b whole cube, all the terms were positive. Now in case of a minus b whole cube, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So this is the identity. So can you tell me what is a? ये हमारा 100a है and the 1 is b. Okay, अब हम इस आइडेंटिटी में यूज करते हैं a क्यूब 100 क्यूब minus 3a square 100 square multiply 1 plus 3a into b square and minus b cube. Okay, and then you can solve it further. Plus 300 and minus 1. अब इसको आप फर्दर सॉल्व करें टू गेट द आंसर। क्लियर? कम टू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 देखिए क्या है, फैक्टराइज। अगेन फैक्टराइज क्वेश्चन इज देयर। तो इसमें फैक्टराइज में अगर आप देखेंगे देयर आर 4 टर्म्स आर गिवन। तो ऐसी आइडेंटिटी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 4 टर्म्स आती हैं, एंड मोर ओवर यहाँ पे देखो क्यूब है, पावर इज 3। तो यहां से थोड़ा आइडिया लग जाता है, दी फॉर्मूला विल बी ईदर a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगनी है। तो अब देखो फ्यू टर्म्स आर नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है दी आइडेंटिटी विल बी
a minus b whole cube. So first of all, we will write this, we will expand this in this form. इस फॉर्म में चेंज करेंगे, a क्यूब, इसको क्यूब में चेंज करते हैं, होल क्यूब में, तो ये 4a क्यूब, अब माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब 3b होल क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a एंड b स्क्वायर. सो व्हाट वी डिड, हमने उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में एक्सपैंड कर दिया. देखो बेटा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, यू विल गेट द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, अब बताइए ये किसकी आइडेंटिटी है? दिस इज द आइडेंटिटी फॉर a माइनस b होल क्यूब. सो हाउ विल यू राइट इट? 4a माइनस 3b होल क्यूब. नाउ सिंस you have to write it in factorization form, so you will write it 3 times. As I have told it, don't forget to write it 3 times. तो आप इसे 3 times you will write it to find out its factorization. Clear? Okay. Fifth part of the same question. Again 4 terms. 4 terms हैं. और ये देखो क्यूब की फॉर्म में आ रहा है, तो इट मीन्स क्यूब का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो हम इसको क्यूब में चेंज करने की कोशिश करेंगे. 3p होल क्यूब, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म्स किस और टर्म को हम क्यूब में चेंज कर सकते हैं? दिस वन, माइनस 216 इज द क्यूब ऑफ 6, ये लिख दिया. अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस फॉर्मूले में 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a, दिस इज a, 3p इंटू b स्क्वायर 1/6 होल स्क्वायर. As I have told it before also, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आफ्टर कैंसलिंग द टर्म सॉल्व करते हैं, आपका क्वेश्चन ही आ जाएगा. ओके, सो अब बताएंगे ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस b होल क्यूब. ओके, नाउ राइट इट 3 times. You will get the factorization. तो आपका ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा. लाइक दिस यू हैव टू डू द क्वेश्चंस. आई थिंक यू नाउ यू कैन एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस अप टू 8th, रिमेनिंग पार्ट योरसेल्फ. ओके, सो फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज. In next class, we will take the next question onward. Thank you.